सांस्कृतिक तस्वीर भारत के साथ पूरे विश्व को जोड़ रही है और उसमें भारत और जर्मनी के मजबूत होते संबंध की तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भारत की सुंदर सांस्कृतिक झलक का प्रदर्शन, भारत और जर्मनी के द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करती हुई यह तस्वीर है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की यह पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। इस दौरान फ्रेडरिक मर्ज ने साबरमती आश्रम का दौरा किया, बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उसके बाद अब साबरमती रिवर फ्रंट में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के साक्षी बने हैं दोनों नेता। रंग बिरंगी आकर्षक पतंगों से सजा आसमान और उसके साथ भारत की गौरवशाली पारंपरिक सांस्कृतिक झलक का प्रदर्शन। It is indeed our pleasure to welcome our dignitaries. They will be coming amidst you. You can welcome them with complete enthusiasm, love and respect. In order to meet you, our Honorable Prime Minister Sir, Shri Narendra Modi ji, and our Honorable guest, esteemed guest, our Chancellor of Germany, Mr. Friedrich Merz is here. Welcome, sir. Herzlich willkommen, Herr Bundeskanzler. India and Germany soaring together like the kites of Gujarat. We welcome our esteemed dignitaries. You can see on both the sides the culture of our nation. Kuchipudi, Bharatnatyam, the acrobats of Malkham, the masks of India, from Ladakh, from South, Kathakali, the human mask. They are welcoming you. Beda of Patan, Gujarat. खूब खूब स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहेब नु साथे खूब खूब स्वागत करिए છીએ Mr. Friedrich Merz, willkommen. Herzlich willkommen, Herr Bundeskanzler. This is a symphony, grand symphony with 108 musicians. With various musical instruments. They are here to welcome you. Honorable Chancellor Sir, Friedrich Merz. Herzlich willkommen, Herr Bundeskanzler. एक साथ एक सुर में बोलिए, भारत माता की, अतिथि देवो भवा. We are now playing the German tune through the musical instruments of India. Sitar, santoor, flute, violin, mandolin and guitar. The rhythmic beat of tabla, pakhwaj and dhola. It is indeed a pleasure to welcome you, sir. Herzlich willkommen.
the Grand Symphony. Thank you for gracing this wonderful event. It is indeed our pleasure to welcome our honorable dignitaries in this occasion of International Kite Festival 2026. International friendship between India and Germany, a deep harmony and soaring skies depicting true celebrations of two cultures, finding a common rhythm on the banks of the Sabarmati. We welcome Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel sir, Honorable Deputy Chief Minister. We willkommen to all the delegation of Germany. It's indeed a pleasure to have you over here. खूब खूब स्वागत करिए छे माननीय मुख्यमंत्री साहेबનું સાથે સ્વાગત છે માનनीय નાયબ મુખ્યમંત્રી સાહેબનું વિશેષ ક્ષણ સાબરમતીના કાંઠે આજે જ્યારે આટલા વિશેષ મહાનુભાવો પધાર્યા છે. Once again, it's wonderful to have the wonderful guests from Germany. More than 1,000 kite flyers from 50 countries, 13 Indian states and across Gujarat fill the horizon. The color blast of India and Germany, the friendship. Beautiful. Today the skies of Ahmedabad on the river Sabarmati are filled with wonderful colors, welcoming our dignitaries who have graced this wonderful event.
साबरमती रिवर फ्रंट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में शामिल हुए। न सिर्फ शामिल हुए बल्कि अपने हाथों से दोनों नेता पतंग भी उड़ा रहे हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की पहली आधिकारिक भारत यात्रा, और इस यात्रा के दौरान भारत की सुंदर संस्कृति की झलक का प्रदर्शन आज भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व देख रहा है। भारत, जिसे उत्सवों का देश कहा जाता है, और उसके तमाम सारे उत्सवों की सांस्कृतिक धार्मिक मान्यता के साथ साथ उनके वैज्ञानिक कारण भी हैं। उसी के तहत जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज पतंगबाजी का आनंद ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ।
માનનીય પ્રધાનમંત્રી અને માનનીય ચાન્સેલર જર્મની આપણી વચ્ચેથી અહીંયા ઇન્ટરનેશનલ કાઇટ ફેસ્ટિવલ 2026નો શુભારંભ કરી અને વિદાય લઈ રહ્યા છે, પ્રસ્થાન કરી રહ્યા છે, ત્યારે આપણા મોંઘેરા મહેમાનોને તેઓ ફરી પધારશે તેવી આપણે तो साबरमती रिवर फ्रंट की एक खूबसूरत तस्वीर जिसमें जर्मन चांसलर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने पतंगबाजी का भी आनंद लिया। भारत की सुंदर संस्कृति की झलक साबरमती के रिवर फ्रंट पर नजर आई, जहां पर आसमान में भारत की इंद्रधनुषीय संस्कृति के रंग देखने को मिले। रंग बिरंगी आकर्षक पतंगों से सजा आसमान और उसके साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की सांस्कृतिक झलक, जिसमें राजस्थान का चरी नृत्य, गुजरात का गरबा, भारत का शास्त्रीय संगीत, भारत का पारंपरिक खेल मल्लखंब, इन सभी की झलक यहां पर देखने को मिली। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने पतंगबाजी का भी आनंद लिया और उनके चेहरे की खुशी, उनके चेहरे का संतोष ये गवाही दे रहा था कि इस दौरान उन्होंने खूब आनंद लिया। साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का सुंदर नजारा। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघना देव जुड़ चुकी हैं अहमदाबाद से। मेघना, साबरमती रिवर फ्रंट पर हमने भारत की सांस्कृतिक झलक देखी, लेकिन जब तस्वीरों में हम जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को देख रहे थे तो उनके चेहरे की खुशी बता रही थी कि कितना ज्यादा आनंद उन्होंने इस पतंग उत्सव में शामिल होकर के लिया। बिल्कुल, और इस बात को हम विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि कितने वाइब्रेंट तरीके से, जैसे हम गुजरात को जानते हैं कि मेघना, आप सुन पा रही है मुझे? बिल्कुल, और किस तरीके से देखिए ये एक पूरा कार्यक्रम जो है हर साल होता है। हमारे सहयोगी मेघना देव से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो नज़ारे हैं ये बता रहे हैं भारत की सांस्कृतिक विरासत की खूबसूरती को। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने पतंगबाजी का आनंद भी लिया। मेघना, आप हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तो समझना चाहेंगे कि इस पतंग महोत्सव में फ्रेडरिक मर्ज के चेहरे की खुशी बता रही थी कि उन्होंने कितना आनंद लिया। कैसा नजारा है इस वक्त, क्या कुछ महसूस कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए पराक्रम, ये जो पतंग महोत्सव है ये हर साल यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, और इस बार जब जर्मन चांसलर यहाँ पर अतिथि बनकर आए हैं तो बेशक ये और महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो यहाँ गुजरात के उत्तरायण का एक नजारा देखें कि किस तरीके से गुजरात उत्तरायण मनाता है, मकर संक्रांति को मनाता है, और पतंगबाजी यहाँ पर एक कितना बड़ा हर्षोल्लास का एक ऐसा उत्सव है जो यहाँ पर ना केवल अभी काइटिस्ट या जो काइट फ्लायर्स आए हैं तो विश्व भर से और भारत के अलग अलग कोने, बल्कि यहाँ पर हर एक छत के ऊपर अगर आप देखेंगे तो अगले 2-3 दिनों तक आपको मकर संक्रांति तक काफी भारी संख्या में लोग नजर आएंगे पतंग उड़ाते हुए। और आज जब हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जर्मन चांसलर ने साथ में पतंग की डोर थामी और जिस तरीके से उन्होंने पतंग उड़ाई, तो ये बेशक एक बहुत ही आइकॉनिक विजुअल्स हैं जो यहाँ साबरमती रिवर फ्रंट से हमें मिल रहे हैं। और साफ तौर पर देखिए वहां पर जिस तरीके का इंस्ट्रूमेंटल एक कार्यक्रम हुआ जहां पर भारत की संस्कृति की झलक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के द्वारा, सांस्कृतिक झलक डांस के द्वारा वहां पर हमने देखा कि किस तरीके से गुजराती जो गरबा के पोशाक होते हैं उसमें महिलाएं वहां पर गरबा करती हुई नजर आई, उनका स्वागत किया, और कितने सारे लोग, कितना एक्साइटमेंट यहाँ पर लोगों के बीच था जो कि काफी हद तक हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सक रहे थे, क्योंकि
ये जो रंग है, ये जो पतंगे हैं और ये जो पतंगबाजी का यहाँ पर जोश नजर आता है पराक्रम, ये बहुत ही अगर कोई व्यक्ति जो बाहर से आता है उसके लिए बहुत नया है। न केवल बाहर जहाँ विदेश की बात कर रहे हैं, बल्कि अगर भारत के किसी दूसरे राज्य से भी कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर आए गुजरात में, खास तौर पर मकर संक्रांति के समय, तो वो इस बात को बेशक महसूस कर सकता है कि पतंगबाजी यहाँ पर एक जोश और जुनून है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस रहा होगा उनके लिए बेशक। और जिस तरीके से उनकी एक्साइटमेंट उनके चेहरे पर नजर आ रही थी और जितने खुश वो नजर आ रहे थे और क्यूरियस भी नजर आ रहे थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको धीरे धीरे बता रहे थे कि ये यहाँ पर ऐसा है, ये साबरमती रिवर फ्रंट है, ये पतंग है, ये डोर है। तो ये चीजें वो साफ तौर पर वो नजर आती है कि कितना हमारी जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सॉफ्ट पावर है, उसको उसमें भी कितनी ताकत है लोगों को जोड़ने की। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कई देशों से यहाँ पर पतंगबाज आए हैं, 1000 के आसपास पार्टिसिपेंट्स हैं। तो इसमें जर्मनी से भी कई काइटिस्ट आए हुए हैं जिनसे हम कल मिले थे, हमने उनसे बात भी की, वो भी काफी एक्साइटेड है और वो अपनी खास किस्म की पतंगे यहाँ पर लेकर आए हैं। तो यहाँ पर एक चीज और देखने मिलती है कि पतंगबाजी अलग अलग देशों में कितनी अलग अलग प्रकार की होती है और उसको, लेकिन फिर भी जब यहाँ पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में जब लोग आते हैं तो वो कैसे एक हो जाते हैं। कई ऐसे काइटिस्ट ने भी हमें ये बताया कि वो 15 साल से 20 साल से इस काइट फेस्टिवल में आ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए 2 दशक में हर साल एक जगह पर इकट्ठा होने का ये एक काइट फ्लायर्स के लिए एक गेट टुगेदर डेस्टिनेशन बन चुका है, जो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हो रहा है अहमदाबाद में। तो वो एक एनुअल गेट टुगेदर का एक मंच हो जाता है जहां पर सभी लोग आते हैं, अपनी हर बार नए नए इनोवेटिव काइट्स लेकर आते हैं, मैसेज वाली काइट्स लेकर आते हैं, ऐसी काइट्स लेकर आते हैं जहां पर उनका कल्चर, उनके कलर और उनके डिजाइन दिखते हैं। तो ये चीज बहुत ही अनोखी भी होती है और एक ऐसा एक्सपीरियंस है जहां पर, चूंकि ये ओपन फॉर ऑल रहता है, तो जो फ्लाइंग जोन है केवल उसको रिस्ट्रिक्टेड रखा जाता है, लेकिन जो लोग यहाँ पर विजिटर्स आते हैं वो देख सकते हैं काइट फ्लायर्स को और उनकी काइट्स को भी। कि ये जो सांस्कृतिक विरासत है एक तरीके से ये वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी देती है। और हमने जिस तरीके से जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को यहाँ पर देखा पतंगबाजी का आनंद लेते हुए, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत और जर्मनी के द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ता का मूर्त रूप देती है भारत की ये सांस्कृतिक विरासत। बिल्कुल। और चूंकि देखिए हम इस चीज को बेशक हर बार महसूस करते हैं। देखिए आज जब उनका स्वागत किया गया तो उनको पटोला का एक दुपट्टा पहनाया गया, एक केस पहनाया गया। तो पटोला हमारी एक सांस्कृतिक पहचान है, गुजरात की एक अनोखी पहचान है। बहुत ही प्रिसीजन से जो वीवर्स होते हैं पटोला बनाते हैं, बहुत ही एक हम मान सकते हैं बहुत एक्सक्लूसिव चीज होती है किसी को पटोला गिफ्ट करना। गुजरात में खास तौर पर इस चीज को बहुत ही प्रीमियम चीज मानी जाती है, जो कि हमारे वीवर्स महीनों की मेहनत से प्रिपेयर करते हैं। तो उस चीज को यहाँ पर शोकेस किया गया है। अगर हम देखें तो हमारे कला संस्कृति को शोकेस किया गया, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक वहां पर बजाया गया। तो ये इन सब चीजों से हम अपनी सॉफ्ट पावर को, अपने कल्चर को, अपने जो धरोहर है उसको भी एक वैश्विक मंच मिलता है। क्योंकि आज अगर देखें तो विश्व भर के लोग जानना चाहते हैं कि जब जर्मन चांसलर यहाँ पर आए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी क्या बातचीत होगी, इस विजिट में क्या खास रहेगा, वो क्या क्या करने वाले हैं। तो जब ये उत्सुकता विश्व के अलग अलग देशों में रहती है, जर्मनी में भी होगी क्योंकि उनके चांसलर यहाँ आए हैं, तो वो जानेंगे यहाँ के कल्चर को। एक तरीके का एक मैसेजिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि भाई कि इतने बड़े पैमाने पर इतना बेहतरीन स्वागत भी किया गया, इतना कल्चर का डिस्प्ले है यहाँ पर और इसको विश्व फलक पर ये देखा जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात भी होती है जो कारीगर हैं उनके लिए भी, जो वीवर्स हैं उनके लिए भी, और जो आर्टिस्ट यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए भी। अब ये देखिए जो ये फेस्टिवल की जब मैं बात कर रही हूँ पराक्रम, तो ये फेस्टिवल एक कह सकते हैं गुजरात का एक बहुत ही अनोखा फेस्टिवल इसलिए भी है क्योंकि अब तो इस काइट फेस्टिवल को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे, कच्छ में, कई जगहों पर किया जाता है। और ये इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो बताया जाता है कि 1989 से शुरू हुआ था, लेकिन इस इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल को 1989 से होस्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो इसको इतना बड़ा रूप देना, इतना बड़ा मंच देना, इतने वैश्विक आर्टिस्ट जो काइट फ्लायर्स है उनको यहाँ पर बुलाना और इसको इतने बड़े पैमाने पर करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ ही वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की थी। पहले काइट
फेस्टिवल और वाइब्रेंट गुजरात एक साथ होता था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इनका स्वरूप बड़ा होते गया, वैसे वैसे काइट फेस्टिवल और वाइब्रेंट गुजरात को अलग अलग बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर होस्ट किया जाने लगा। जनवरी जनरली अगर देखें तो क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात बायनुअल इवेंट होता है, 2 साल में एक बार होता है। इस बार क्योंकि रीजनल कॉन्फ्रेंसेस भी हो रहे हैं, ये पहली बार है जब वाइब्रेंट गुजरात के रीजनल कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। लेकिन उसके अलावा अगर देखें तो 2 साल में एक बार होता था। तो जब यहाँ लोग आते थे, बिजनेस डेलीगेशंस आते थे वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर समिट के लिए, उस समय वो काइट फेस्टिवल भी चल रहा होता था और अभी फ्लावर शो भी चल रहा होता है। तो ये एक ऐसा सीजन होता है जब लोग ना केवल क्योंकि अहमदाबाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, तो यहाँ का ना केवल हेरिटेज देखे बट यहाँ के कल्चर को महसूस कर सके और यहाँ की वाइब्रेंसी को देख सके जब इस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है, स्पेशली जनवरी, जब वाइब्रेंट गुजरात समिट होता है, जब काइट फेस्टिवल भी होता है, जब फ्लावर शो भी होता है और बाहर से जब डेलीगेट्स आते हैं तो देखते हैं साबरमती रिवर फ्रंट को, जब वो देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों के एंटरटेनमेंट और एंगेजमेंट और कल्चर को डिस्प्ले पर रखा गया है, तो इन सभी चीजों को खास तौर पर यहाँ पर दिखाया गया है। और देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर अंदर आ रहे थे, इस काइट फेस्टिवल में एंटर कर रहे थे, तो एक पुराना स्ट्रक्चर सा बनाया गया था जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको समझाते हुए नजर आए। वो जो स्ट्रक्चर है वो अहमदाबाद का ओल्ड हेरिटेज है, वो यहाँ की पहचान है। उसको पोड़ बोलते हैं, पोड़ का इलाका है जहाँ पर लोग रहते थे पहले, अभी भी कई लोग पोड़ में रहते हैं। अहमदाबाद का, पुराने अहमदाबाद की वो पहचान है, ओल्ड सिटी बोला जाता है उसको, जो अहमदाबाद की हेरिटेज का फाउंडेशन है। तो वो पोड़ में आज भी कई लोग देश विदेश से आते हैं, वहाँ के टेरेसेस पर उत्तरायण के समय, मकर संक्रांति के समय खास तौर पर वहाँ पर पतंगबाजी होती है, ऊंधियू जलेबी बनाया जाता है। लोग पोड़ की जो विदेश में जितने जो भारतवंशी रहते हैं, जो खासतौर पर जो गुजरात के जो लोग हैं, जो एनआरआईज हैं, वो खास तौर पर इस समय गुजरात आते हैं और पोड़ के इलाकों में टेरेसेस को रेंट पर लेते हैं, हेरिटेज एरिया में वो पतंगबाजी करना चाहते हैं। तो ये इससे आप पता कर सकते हैं कि कितना इसके लिए क्रेज है, कितना ज्यादा जुनून है लोगों के अंदर। और ये जो हेरिटेज सिटी की बात है, उसका आर्किटेक्चर, उसका जो अगर हम देखें तो एक हिस्ट्री और इन सभी चीज जो उसकी आर्कियोलॉजिक है, वो सब इतनी बेहतरीन है कि वो जो लोग बाहर से आते हैं उनको बेशक बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी करती है। तो ये अगर हम देखें तो उत्तरायण एक तरीके से सिर्फ फेस्टिवल नहीं बल्कि कल्चर का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है गुजरात के, और जो कि वर्ल्ड में अब काफी हद तक फेमस हो चुका है। बहुत लोग जानते हैं कि अगर गुजरात आना है तो या नवरात्रि पर आना है या फिर उत्तरायण के समय आना है, क्योंकि तब ऐसा समय, ये दोनों ऐसे समय होता है जब गुजरात का कल्चर कंप्लीट डिस्प्ले पर होता है। और ये सबसे बेस्ट टाइम होता है गुजरात आने के लिए और यहाँ के कल्चर को करीब से जानने और देखने के लिए। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के सामने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के साथ साथ भारत की सुंदर संस्कृति की पूरी झलक, एक तरीके से पूरा भारत वहां पर प्रस्तुत किया गया। क्योंकि हमने देखा वहां पर गुजरात का गरबा तो था ही, उसके साथ राजस्थान का पारंपरिक चरी नृत्य हमने देखा, साथ ही भारत का पारंपरिक खेल मल्लखंब का प्रदर्शन भी किया गया, शास्त्रीय संगीत का प्रदर्शन किया गया, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी का प्रदर्शन किया गया। तो एक तरीके से संपूर्ण भारत की सुंदर संस्कृति को वहां प्रदर्शित किया गया। આજની આ વેળા અત્યંત રંગીન, કારણ કે तो हमारी सहयोगी मेघना देव बता रही थी कि कितना खूबसूरत